IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 29 کروڑ ڈالر کی کس جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ واشنگٹن میں منعقدہ اجلاس میں 1 ارب 9 کروڑ ڈالر کی منظوری امدادی پروگرام کے تحت دی گئی۔ باقی 20 کروڑ ڈالر موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے منصوبے کے لیے ملیں گے۔ IMF سے 1.3 ارب ڈالر فوری پاکستان کو ملیں گے۔ بانی PTI کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ نے عندیہ دے دیا۔ کہا DGI SPR نے پریس کانفرنس میں بڑا دو ٹوک پیغام دیا۔ حکومت نے DGI SPR کے بیان کی تائید کی ہے۔ اس کو مذاق سمجھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ جلسے میں جو باتیں کی گئی ان کو پیغام مل جائے گا اور بڑی قوت سے ملے گا۔ بڑے فیصلے ان کے حالیہ ٹویٹ اور بہنوں کے بیانات کے بعد ہوئے۔ تحریک انصاف بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ PTI کا انجام بانی MQM سے مختلف نظر نہیں آ رہا۔ عنقریب ایک PTI اڈیالہ اور ایک PTI پاکستان والا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لندن میں برطانوی وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور چند پاکستانیوں کی حوالگی سے متعلق بھی بات کی اور ان کی طرف سے پاکستان میں انتشار پھیلانے سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ ملاقات میں محسن نقوی کے ہمراہ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل بھی موجود تھے۔ محسن نقوی نے فارن آفس حکام کو پاکستان کے امیگریشن نظام میں بہتری کے لیے تبدیلیوں سے بھی آگاہ کیا۔ برطانیہ میں موجود سابق فوجی افسر اور یوٹیوبر عادل راجہ کو جج نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم دے دیا۔ جج نے حکم دیا کہ معافی 28 دن تک عادل راجہ کے ایکس، فیس بک، یوٹیوب اور ان کی ویب سائٹ کے پیج پر موجود رہے گی۔ عادل راجہ کو 22 دسمبر تک ہرجانہ اور عدالتی اخراجات کی مد میں 3,10,000 پاؤنڈ ادا کرنے ہوں گے۔ عادل راجہ رواں برس اکتوبر میں اپنے خلاف ہونے والا ہتک عزت کا مقدمہ ہار گئے تھے۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان میں نہ رہے، اگلی بار جواب پہلے سے زیادہ برق رفتار اور شدید ہوگا۔ تینوں مسلح افواج کے افسران سے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خطاب۔ کہا سب یہ جان لیں پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے، بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے۔ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں گے۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے واضح کیا کہ پاکستان کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے رکھنی ہے۔ پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کو پہلا سلام۔ GHQ میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مسلح افواج کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر، اعزازی دستے کی جانب سے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل کو جنرل سلامی پیش۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اعزازی دستے کا معائنہ بھی کیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کو سلامی دی گئی۔ تقریب میں نیول چیف، چیف آف ایئر اسٹاف سمیت اعلیٰ عسکری افسران کی شرکت۔ پاکستان کو UAE کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا UAE کے قومی دن کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب۔ کہا UAE کی موجودہ قیادت نے متحدہ عرب امارات کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ UAE کے قومی دن کی تقریب میں شرکت باعث اعزاز ہے۔
पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर का इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर को आमद पर 21 तोपों की सलामी। इंडोनेशियन सदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने जायजा इजलास से खिताब में कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल मुनासिब कीमत और काबिल भरोसा बिजली फराहमी के मंसूबों पर तमाम मुतालिका इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और माशी तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गवादर में बिजली की बिला तातुल फराहमी मुल्क की माशी सरगर्मियों सरमायाकारी में तरक्की को यकीनी तौर पर बढ़ाने का सबब बनेगी। सनतों सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में कायम करदा सनतों के लिए बिजली की फराहमी को इलाकाई और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक किया जाए। सियासी बदज़बानों के नाम तलाल का खुला पैगाम। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बोलने वाली ज़बान खींच ली जाएगी। अब ऐसा अमल करेंगे, कानून वैसा ही जवाब देगा। अडियाला के बाहर आएँ और अब तमाशा करके दिखाएं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की अहम गुफ्तगू। कहा, पाशा और फैज़ ना होते तो वज़ीर आज़म तो दूर, आपको काउंसलर भी ना बन पाते। पेशावर जलसा सिवाय गालम गलोच और तनकीद के कुछ नहीं था। इदारे के सरबराह पर संगीन इल्ज़ामात लगाएंगे तो कब तक वो खामोश रहेंगे। पीटीआई ने मजबूर किया कि उनको जवाब दिया जाए। बानी पीटीआई ने कभी इसराइल को बुरा भला नहीं कहा। बानी ने कभी भारत की दहशतगर्दी का जिक्र नहीं किया। उनके बच्चे आज भी गोल्ड स्मिथ को गोद में पल रहे हैं। ये लोग इस लायक नहीं, उनसे बातचीत की जाए। बानी ने कभी लोगों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों पर बात नहीं की। बानी की पूरी ज़िंदगी स्कैंडल से भरी पड़ी है। मुल्क दुश्मन अनासिर से गठजोड़ आज़ादी राय नहीं, ऐसे जुर्म के आइन में वाज़ेह सज़ा लिखी हुई है। बानी ने 2014 में पार्लियामेंट और दीगर इमारतों पर हमले किए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, DGISPR ने जो कहा सबूतों की बुनियाद पर कहा। तुम अपनी बकवास और गंदी ज़बान से फ़ौज को मुतनाज़ा बनाते हो। ये कहते हैं कि बाहर बैठे लोग का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन आप मुल्क दुश्मनी के ट्वीट्स को डिसऑन भी नहीं करते। सिंध असम्बली ने पाक फ़ौज की हिमायत और उन पर तनकीद के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन नज्जार ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि ये ऐवान मुल्क की सलामती के खिलाफ बयानात की मज़म्मत करता है और अफ़वाज पाकिस्तान से ज़ारी यकजहती करता है। करारदाद में कहा गया कि सियासी मामलात को सिक्योरिटी फोर्सेस पर ना डाला जाए। फोर्सेस के जवान जान के नजराने पेश कर रहे हैं, इसलिए उन पर तनकीद ना की जाए। पाकिस्तान की नेकनामी में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा किरदार है। अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना होगा। पीटीआई क़यादत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देती है, जबकि भारत के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम सब पर वाज़ेह हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मुल्क के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त किए। आसिफ अली जरदारी 12 साल बेगुनाह जेल में रहे। सिंधी कल्चर डे के हवाले से कहा, सबको अपनी सकाफत मनाने की आज़ादी है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। गाड़ियों के शीशे तोड़ने जैसे वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। कराची में मैन होल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत के हवाले से बड़ा फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हर यूसी गटर के ढक्कन और स्ट्रीट लाइट्स के लिए 1 लाख रुपए बहाना देने का ऐलान कर दिया। कहा, पहले हर यूनियन कमेटी को 5 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसका मकसद गली मोहल्लों के मसाइल हल करना था। मुतादिद इलाकों से शिकायत आई कि रकम नाकाफ़ी है और अक्सर तनख्वाहों पर खर्च हो जाती है। पास आने के बाद फैसला किया गया है कि अब मखसूस तौर पर गटर कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स के लिए रकम जारी की जाएगी। ये रकम दिसंबर से हर यूसी को फराहम होगी।
चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद अराई की जानिब से अराई कन्वेंशन के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन से इज़हार तशक्कुर। अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान सिंध की काविशों को सराहा। अराई बरादरी और अंजुमन के इत्तेहाद और हम आहंगी को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। कहा, इत्तेहाद व इत्तफाक ही हमारा असल ताकत और पहचान है। यकजहती और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए इज्तिमाई काविशें नागुज़ीर हैं। CPLC ने शहर कराची में नवंबर के स्टेट क्राइम भत्ताखोरी और कत्ल के वाक़यात की रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता माह 160 शहरी कारों से महरूम हुए, 15 भत्ताखोरी के वाक़यात रिपोर्ट हुए, 39 अफराद कत्ल हुए। CPLC रिपोर्ट के मुताबिक 19 कारें असलहे के तौर पर छीनी गईं, 141 कारें चोरी हुई। शहरी 3143 मोटरसाइकिलों से महरूम हुए, जिनमें से 391 छीनी गईं, 2752 चोरी हुई। CTD पंजाब की कार्रवाइयाँ। लाहौर, फैसलाबाद और भावलपुर से रौ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। हसास मकामात और इदारों की तस्वीर, भारी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, ID बम और नकदी बरामद। मुल्क में सोने की कीमत एक बार फिर इजाफा। फ़ी तोला 1600 रुपये महंगा होकर 4,43,762 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,372 रुपये बढ़कर 3,80,454 रुपये का हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी रोड शो। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा, हमारे खिलाड़ियों में बहुत सलाहियत है। PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में नया क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं। रमीज़ और वसीम के होते हुए ये काम मुश्किल नहीं। रमीज़ राजा ने लीग के लिए अच्छे मशवरे दिए, उन पर काम करेंगे। रमीज़ राजा ने कहा, PSL की कामयाबी पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है। वसीम अकरम बोले, पाकिस्तान सुपर लीग में मकामी टैलेंट को मौका दे रहे हैं। और सादिकाबाद 300 दुल्हनें 300 दूल्हा। सादिकाबाद में 300 दुल्हनें पिया घर सुधार गई। इज्तिमाई शादी की तकरीब में दुल्हनों के लिए दूल्हा पहुंचने मुनफरिद अंदाज में। कोई आया मोटरसाइकिल, कोई गधा रेडी पर, ऊँट रेडी पर सवार जोड़े की एंट्री ने महफिल लूट ली।